Baba. No. Mata. Abingdon में रहती हूँ बाबा. Abingdon. Sold the big house and little church in the camp. Abingdon में. Don't say you don't understand. That was so clear. ये बताने इन्होंने अपना मकान बदल दिया. अच्छा अच्छा. पहले बड़े में रहते थे, अब छोटे में रहते हैं. और बाइक के बाजू में रहना शुरू किया. बड़ा मकान का क्या किया? बेच दिया. अच्छा. उस जगह का नाम एबिंगडन. जो छोटी जगह ली है. हाँ. ये बता रहे. That's what you said. That's what I said. 5 minutes. Pedal 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pedal. You say that? To progress. I've understood that. दिल के घर से 5 मिनट का रास्ता है. धीरे धीरे बैगर बनते जा रहे हैं. Slowly you are becoming bigger. No, that's it. What? Slowly you are becoming a bigger. Slowly becoming bigger. 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 Yes, bigger. And Lucy Mata stayed for two months. दो महीने Lucy Mata. Lucy Mata 2 महीने रहा. हाँ. Teaching Hindi. Teaching grammar. हिंदी सिखाया. Hindi सिखाया. Lucy Mata, big parcel for Baba. वो लूसी माता ने आपके लिए भेजा. And Marie Mata. That's what they do. And Nana Mata stayed for 1 week. Marie Mata and Anthea Mata came. Anthea Mata, yeah. And Rubai was coming. कब आ रहे हैं? No, he was coming, but he was injured. He got hit by a car. गाड़ी से उनका टुकड़ा हुआ. एक्सीडेंट. कब आ रहे? आने वाले थे. चोट लगा. गाड़ी से चोट लग गया इसलिए नहीं आए. Okay, is that news? News done. Oh, we went to Wembley, to the big mailer at Wembley, and we spoke to 12 PKs while we were there. लंदन में ब्रह्मा कुमारी का मेला लगा था. इन लोगों ने 12 ब्रह्मा कुमारियों के साथ बात की. Result? Well, we just spoke to them. Personally. Looking very happy. क्या रिस्पॉन्स मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस बातचीत की. वही मैंने पूछा था ना. ये कह रहे कुछ उससे भी बातचीत की. और and that's And we went to GRC, we listened to GRC. Global Retreat Center भी गए थे वो. We saw a lot of the residents there. I spoke to a lot of residents. वहाँ रहवासी जितने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया पड़ता है. They didn't look very happy, but we did. वो खुश नजर नहीं है, लेकिन हम तो खुश थे. उन्होंने कुछ समझा नहीं. Did they understand anything from your side? English. Right. GRC. Yeah. One of them I spoke to for सिर्फ एक. a long time. एक ने एडवांस गाड़ी समझा. Understand. थोड़ा समझा लेकिन आया नहीं. मिलने की इच्छा नहीं जाएगी. Not really. Okay. Enough. Question. Okay. That's it. Any question? ये आए थे एक दफा
लंदन की तो पाठशाला में कौन सी? जो संगठन होता है ना, पोर्चुगल से। So, Dan, पुर्तगाल कितने घंटे का रास्ता पड़ता है? लंदन लंदन से how long is between Portugal and London? 2 hours. 2 hour सफर प्लेन में। 2 घंटे। प्लेन में 2 घंटे का सफर। स्पेन में पड़ जाता है। same for David Byrne. David Byrne, 2 hours by plane. Well, hour. 1 hour by plane. डेविड भाई अब स्कॉटलैंड में चला गया, जैसे लंदन साउथ में है वो नॉर्थ में चला गया। हाँ, वो भी 1 घंटा प्लेन के सफर में। हाँ, प्लेन के सफर में, नहीं तो 4-5 घंटे उसको लगते हैं मोटर बाइक से। वो कहना मतलब स्कॉटलैंड किस लिए गया? वहाँ उसकी बहनें रहती हैं और उसकी माँ, उनके साथ वो एडजस्ट हो गया। एंथिया माता 4 मास के लिए वहाँ गई थी स्कॉटलैंड में। हाँ, डेविड भाई के साथ रहने के लिए, जब वो इंडिया से वापस आए थे। I can ask you about that. In the Yagya, there is the policy, Srimad seems to be, let's start there again. There's a lot of secrecy in the Yagya. Can Baba tell us what the Srimad about what we tell each other is? What do we ask in front of other people? What do we ask Baba? What is it okay for people to know about what we do and what is not okay? मतलब उनका प्रश्न ये है, यज्ञ में बहुत कुछ गुप्त रखा जाता है, तो बाबा से ये श्रीमत लेने की इच्छुक है कि हम कितना हद तक बात कर सकते एक दूसरे से, और बाबा के साथ क्या क्या सामने रख सकते। जितना मालूम हो उतना हद तक खुली बात कर सकते हैं। That much मालूम हो मतलब जितना इनकी नॉलेज में हो उतना खुली बात कर सकते हैं। जो ना मालूम हो, मालूम करने की इच्छा हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। Means Baba is telling that much you know, you can discuss with others, and that you don't know, you can get it clarified. About Gyan, about Gyan, but about service. सर्विस के, सेवा के बारे में हाँ, क्या क्या हम बोल सकते हैं? मुझे जैसे जो भी जो बात अटकती हो वो बोलिए, जो सर्विस में बाधाएं डालती हो वो बात पूछिए। Means you can ask everything with respect to service. What all things that get stuck up, you can ask, and what all are the hurdles that you need to clear. Well, you can get it all. Yes, but there is no secrecy in front of other people? आ जाएगा, आ जाएगा। Because there is. I said, well, from what Baba's saying, anything can be said in front of anyone. But this is not what happens. There's a lot of secrecy. Secrecy of what? Can you please clear it? Of what the people are doing. If somebody's coming to India to do something, they don't tell anyone. मतलब उदाहरण दिया मैंने, पूछा गुप्त मतलब आप थोड़ा विस्तार में थोड़ा खुल के बताइए, तो इन्होंने बोला एक मिसाल दिया, जैसे मतलब जैसे इन्होंने एक मिसाल दिया, कोई बारात आ रहे तो पता ही नहीं चलता है, आ जाते हैं, सभी को पता नहीं चलता है आपके क्या किया जाता है, क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। एक एग्जांपल दिए सारे डाटा दे दो इकट्ठे, ये लोग आए, ये लोग इतने दिन रुके, इन्होंने ये कहा, जो कुछ हुआ उसे बता दिया जाए, क्या आ जाए। इनका जो प्रश्न है वो ये कहना चाहते हैं कि यज्ञ में लोग ऐसे काम करते हैं और दूसरे लोग यज्ञ में उनको गुप्त रखकर, जैसे यहाँ आ जाते हैं, जैसे बताइए। जैसे वह लंदन से
हमने किसी को बताया नहीं और हम यहाँ आ गए, ये कहना वहाँ भी नहीं बताया और यहाँ भी नहीं बताया। हाँ, यहाँ बिना बताए कैसे आए? यहाँ तो मालूम पड़ जाता है। ये कह रहे हैं कि ये चीजें गुप्त रखी जाती हैं, नहीं, यानी किस हद तक लोगों को बताना चाहिए और किस हद तक गुप्त रखनी चाहिए। बाबा के प्रोग्राम के अलावा और सबका प्रोग्राम आउट किया जा सकता है। Baba is telling, well, Baba gave the benchmark. He is telling, except for Baba's program, you can spell out the program of every other person. Okay. So what is the meaning of the left hand mustn't know what the right hand is doing? हाँ बाबा, इनका ये पूछना है, जैसे बोला जाता है ना सेवा के मामले में, जो दाहिने हाथ से जो दिया जाता है वो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, किस मिसाल में बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि बाबा से लेन देन हमारा है और किसी से लेन देन नहीं। तो बाबा को ही मालूम पड़े और देने वाले को मालूम पड़े। बीच में दूसरों को मालूम पड़ने से उसकी कीमत कम होती जाती है। एक को मालूम पड़ेगा कीमत कम होगी, दूसरे को मालूम पड़ेगा कीमत कम होगी, तीसरे को मालूम और कम होगी, चौथे को मालूम पड़ेगा और कम होगी, सारे को एक्सपोज हो जाएगा, उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। यही इसका Baba is telling, see, whatever you give as seva, only the taker, that is Baba, and the giver, whoever it is, only they should be known. That is, the dealing should be only with Baba. Suppose it gets exposed in front of one, its value goes off. If its value goes off much, if it gets revealed to 2 persons, still its value becomes less if it gets revealed to 3 persons and 4 persons likewise. And suppose if it gets exposed in front of everybody that this is the seva, then the entire value is lost. So whatever is the dealings, it should be only between Baba and the one who is giving, and not to be revealed to the others. Baba says. That is the secrecy Baba is telling to maintain. That is the good of. Right. If you share it, then the value diminishes. Okay, is it with respect to any other thing? Please clarify more. What get clarified? If you explain it with examples, Baba will give the explanation. Well, मुरली में जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ही बताया और वैसा ही होना चाहिए. So Baba is telling whatever that has been said in the Murli, Baba is yeah. But there's explained. When we see Baba, it's good to have specific things clarified about specific service. And the Murli covers everything. मतलब ये कह रहे हैं बाबा के साथ जब हम मिलते हैं एक निश्चित बातों के बारे में, निश्चित सेवा के बारे में हमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए. मुरली में तो बहुत कुछ आता है, सारा ही हम सारे ग्रास करने की कोशिश करें. मतलब कोशिश करें. हर एक आदमी को ज्यादा से ज्यादा मुरली जो आता है सो ग्रास करना अच्छा ही तो है. Well, it is a good if you try to grasp everything that is said in the Murli. Yeah, obviously. Well, okay, there's things that we've done, yeah, that we'd like to ask Baba about. But if we talk about them now with everybody here, because there are questions that need answering, is that do we have to have a private meeting? तो बाबा पूछ रहे हैं सेवा के बारे में, इनका बहुत कुछ प्रश्न है जो बाबा से क्लैरिफाई करना है. और ये अगर ये वो सारे बातें यहाँ उठा देंगे सभा के बीच में तो सबको पता लग जाएगा. तो पूछ रहे ये अच्छी बात है ना कि हम एक पर्सनल सेवा के बारे में कोई ऐसा प्लान होता है जो ब्रह्मा कुमारियों से कनेक्टेड है तो उसको थोड़ा समय गुप्त रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की बात अगर ब्रह्मा कुमारियों तक पहुँचती है तो हमारे सेवा को नुकसान पहुँचा देंगे. मतलब एक और बात है, इनका कुछ मैं समझ रहा हूँ, ये कुछ काम किया है, कुछ टेक्निकल काम किया है कंप्यूटर के संबंध में, और वो इनको क्लैरिफिकेशन चाहिए. अभी वो क्या किया है, कितना मेहनत किया है, ये सारे बात जो है ये सभा के बीच में रखने योग्य है या पर्सनल में बात करने योग्य है.
क्योंकि उसमें और भाषा की प्रॉब्लम की वजह से एक आदमी को तो मीडिया रखना पड़ेगा, जो फ्लोइंग ऑफ इंग्लिश हमको समझ नहीं आता है सर। So Baba is telling that with respect to service, if it is something which is related to Brahma Kumaris, then it should be kept secret. Because you try to do service and the BKs come to know of it, and they will try to create hurdles, try to spoil it. So therefore it needs to be kept secret. Well, with respect to other things, I talked to Baba with respect to something that you have done something in computer and technical thing, and does it need to be presented in front of everybody? So Baba said, since Baba cannot understand the flow of English, Baba has to have one mediator. Oh yeah, I mean everyone else. Would do we just have one mediator and no one else, or do we have? हाँ बाबा ये पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति को बीच में रखा जाता है या दो चार औरों को भी रखा जाता है? एक सिर्फ ट्रांसलेशन करने के लिए. Just one for the sake of translation, बाबा. Okay. So right, so fine. So these questions here are about Gyan. That's all really. हाँ तो इन्होंने समझ गए, मतलब हम यहाँ जो भी उठाए ज्ञान से संबंधित प्रश्न ही होना चाहिए ना, इसका मतलब. तो सेवा के बारे में अलग से बात करें तो अच्छा रहेगा. Yes, right. That's easy then. I've got one question. Yes. About service. Not about service, about Gyan. Confused. I can't follow my English. I don't know. It's about how does one's path become known? How do I get to know my path? बाबा ये पूछ रहे हैं, मैं अपना पार्ट को किस तरह से पहचान सकूंगा? जितना बीज रूप स्टेज में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक टिकते जाएंगे, उतना आत्मा का विस्तार का पता चलता है. The amount of time you try to concentrate yourself in Bij Root stage, Yes. that much you come to know about your expanse. Yes. Okay. So does. Yeah, I knew that. So does the part really become clear by what we do, rather than until we take action? We take action and then our part becomes clear. बाबा ये पूछना चाहते हैं, तो हम कुछ करेंगे उसके आधार से हमारा पात्र खुलता जाएगा. सेवा के हिसाब से पद बनता है, वो खुलता जाएगा. Your position will be revealed according to the service you do. And that gets revealed. Yes. So we could sit in a Bij Root stage for a long time and do nothing. And this is no good. What stage? Bij Root. Bij Root. Conscious stage. Bij Root. You understood that. And you do nothing yet. Well, it's easy to think, I don't know my part. I do nothing. I'm not going to do anything until I understand my part. तो बाबा बोल रहे हैं तो बहुत आसान सी बात है कि मैं बीज रूप अवस्था में बैठ जाऊं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, तो जब तक मुझे अपने बारे में कुछ पता चले तब मैं कुछ करूंगा. ऐसे बैठ अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा. तो बाबा इज टेलिंग, वेल if it can be really be achieved, it is very good. What, the Bij Root stage? Yeah. Very good. Okay. Because बाबा ने कहा है कि जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, कोई बात याद नहीं रहती, तो बस वो याद में मस्त हो जाए. याद जिसकी ज्यादा होगी, अंत में उसके अंदर ज्ञान सारा ही समा जाएगा. So Baba is telling, the ones who think that we don't have much knowledge, we can't understand it, we can't remember it. Well, Baba is telling, well, you sit in remembrance. In the end, the practice will become such that all the knowledge will get settled down in him automatically. yes, but until then, till that time, तब तक do we take no action? तब तक हम क्या करना है? तब तक कुछ क्या कर- हाँ, वो स्थिति आने तक जब तक हमें योग बल की पावर नहीं मिलती है, जिससे हम अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर सकें, तब तक जो भी साधन मिलते हैं हम अपनी बीमारियों को नष्ट करते हैं.
So Baba is telling, until we don't achieve that stage of yoga bal, through which we can destroy all the diseases. Till then, well, we have to utilize all the things that are there to At our disposal. Any things that are at our disposal, you can use it. That is to say, you have to carry on with. You have to keep doing things blindly. Thank you, Baba. जो मिल रहा है वो भी क्यों छोड़ रहे हैं? So Baba is telling, why to leave all that you are getting. Why to leave? That is, you are having, well, all these things are at your disposal. Yes. You can use resources. it. The resources, yes. Yeah. Well, you can utilize all those resources. Yes, to do what though? Because we don't understand what to do until we have a बीज रूप stage. वो बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है हमको क्या करना चाहिए जब तक हम बीज रूप अवस्था में ना ठीक है. अभी मतलब इनके पास थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ती जाती है ना, ऐसे तो नहीं कि प्रैक्टिस नहीं बढ़ रही. Baba is saying it is not that nothing is being done. Well, slowly and surely you can increase the practice. Practice will surely increase. Practice makes it increase. You can clarify what you are talking about, seva, or what you want to do in according to seva. You are asking Baba. What to do? You are asking. Because Baba is still not clear what exactly. What am I talking about? Yeah, what We're not- We can't talk. Yeah. We're not to talk in front of everyone. It has to be private. या मतलब अभी भी कुछ है, खुल के बोलना नहीं चाहते, मतलब पर्सनली बात करना चाहते हैं, कुछ कुछ बातें हैं अकेले में. अकेले. और मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे कोई कोई आत्मा आपके सामने, बाबा के सामने साकार में आते हैं तो कोई मतलब सब कुछ भूल जाते हैं ना, जीरो हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता. उससे पहले उसके मन में बहुत सी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन जब बाबा सामने आते हैं तो सब भूल जाता है और क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता है. तो इसका क्या कारण हो सकता है उस आत्मा का, ऐसा क्यों होता है? जो बाबा के बच्चे होंगे, बाबा के घर के होंगे, तो बाबा का घर तो परम धाम है. कहाँ का रहने वाला है? परम धाम पे. परम धाम में संकल्प चलता है, निसंकल्प. निसंकल्प स्टेज है. निसंकल्प स्टेज ही भवन में रहने वाला है. तो जो बच्चे बात करते हैं, कनेक्शन जुटता है, तो परम धाम से उसका कनेक्शन हो जाता है. सुनील, अगर कोई आत्मा को ऐसा अनुभव नहीं हो जिनको नहीं होता है वो हमारे कुल के नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब किसी और कुल के हैं. तो वो आत्मा बाबा के साथ पहले तीसरे जन्म से ही बाबा के साथ साथ रहे. नजदीक होगा तभी तो उसको विस्मृति हो जाती है देखते ही, दुनियादारी भूल जाती है. और दूसरा बाबा, शिव बाबा जो है वो, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो वो हिंदी सिर्फ हिंदी समझते हैं, दूसरे भाषा नहीं समझते. शिव बाबा, शिव बाप जो है, शिव बाप किस मुकर्रर रथ में आता है? हिंदी भाषा जानते हैं. जैसे तन में आएगा वह वही भाषा जानेगा. ढेर सारी भाषाएं सीखने की क्या दरकार? तो इसका मतलब शिव बाप को हिंदी के अलावा और भाषा नहीं आती. भाषाएं सीखे तो बैठ के. अगर इस हिसाब से अगर अमेरिकन चोले में प्रवेश करे, हाँ, अमेरिकन चोले में क्यों प्रवेश करेगा? नहीं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बाबा, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है. तो एक में प्रवेश करेगा तो सब में प्रवेश करेगा. सर्वव्यापी होगा क्या? वो एक व्यापी बन के आता है या सर्वव्यापी बन के आता है? एक व्यापी बन गया. फिर हाँ, बच्चों में सर्विस के लिए प्रवेश होता है, लेकिन पता नहीं चल सकता कब आया, कब गया, क्या गया. दूसरे बच्चे में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं. मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं. जैसे बाबा मुरली में बहुत बार कहते हैं कि हर समय बैल पर तो सवार नहीं होता. तो और बच्चों में सर्विस नहीं करनी है. मतलब कोई को दृष्टि की पावर देकर के उठाता है, कोई को वाचा की पावर से उठाता है. समझाने वाला कमजोर होता है लेकिन हिम्मत करता है, तो हिम्मत करने वाले को बाप मदद नहीं करेगा. तो इस हिसाब से तो फिर शिव बाबा तो एक व्यापी नहीं होगा. ये साबित ही नहीं होगा तो सर्वव्यापी कैसे होगा?
साबित होगा, प्रूफ मिलेगा, तभी तो सर्वव्यापी होगा। तो बच्चों में सेवा करने के लिए चला जाता है। और जैसे कहते हैं ना बाबा कि हर धर्मपिता आकर के सृष्टि रूपी मकान का मरम्मत करते हैं। धर्मपिता, सभी धर्मपिता, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो जैसे त्रेता युग का अंत हो जाता है, त्रेता युग का जब अंत हो जाता है तो इब्राहिम आता है सृष्टि पर। तो इब्राहिम ने आकर के कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो तो द्वैत फैलाता है सृष्टि पर। द्वैत फैलाता है, लेकिन उस समय ये इस्लाम धर्म की आत्माएं गिरती कला में आ जाती है ना, दृष्टि का सुख भोगते भोगते, और देह के सुख भोगने में बहुत ज्यादा आदी है, वो सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती है, पतित बन जाती है। तो उन आत्माओं को उठाता है, उन्हें पावर बढ़ देता है, उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है उनके आने से ही। नहीं बाबा, जैसे इब्राहिम की आत्मा परम धाम से नीचे आती है। पूरा मकान थोड़े ही रिपेयर करना होता है, जो हिस्सा टूटता फूटता है वही तो रिपेयर करना होता है। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो भी आत्माएं हैं वो उस समय तक नीचे गिर जाती है। वो दुनिया का वो हिस्सा टूट गया, जैसे टूटने लगा, तो उनकी मरम्मत कर देता है। इसका मतलब अपने कुल का ही करता है वो। हाँ, अपने कुल की आत्मा को मरम्मत कर देता है। वैसे ही क्राइस्ट और बुद्ध है सभी के लिए ऐसे। और बाबा हमको एडवांस में समझाया था त्रिमूर्ति कोर्स में, त्रिमूर्ति कोर्स जब हुआ था एडवांस में भर्ती में, हमको समझाया गया था कि जब पहली बार परमपिता परमात्मा आते हैं सृष्टि पर, त्रिमूर्ति के साथ इकट्ठा आते हैं, तो जब गीता माता वो जो दादा लिख रहा है जो क्लैरिफिकेशन थे उसको जब सुनाती है तो उस वक्त शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना, शिव बाबा गीता माता क्लैरिफिकेशन थोड़ी सुनाती है। नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं, वो साक्षात्कार की बात है। हाँ, साक्षात्कार की बातें सुनाती है। हाँ जी, सुनाने का काम शिव बाबा करते हैं ना। सुनी हुई बातें सुनाती है। सुनी हुई बातें सुनाती है, वो शिव बाबा ही उनके द्वारा सुनाती है ना, उनके मुख से। सुनी हुई को सुनाना, हाँ जी, बस ये किया है शिव बाबा ने किया। प्रजापिता के सामने किसी को ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी। हाँ जी, ब्रह्मा को तो हिम्मत थी नहीं। हाँ जी, ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं बताया उनको, तो माताओं को बताया। माताओं में भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी, तो शिव बाबा ने प्रवेश करके हिम्मत दी। हिम्मत दी मतलब बाबा ने प्रवेश तो नहीं किया, प्रवेश करके प्रवेश करेगा, एक तरफ प्रवेश करेगा, वो सुनाना शुरू करेगी और वो सुन करके समझना शुरू करेगा। उसका सुनाना और सुनना और उसका समझना और समझाना साथ साथ चलता है। वही तो जैसे कह रहे थे कि एक साथ ही शिव बाबा मतलब एक साथ ही हो जाता है योगा। ये हमने तुमको सुनाया, हाँ जी, सुनने के साथ तुम समझते नहीं हो। हाँ, समझते हैं। और जब समझेंगे तो समझाएंगे भी, तो समझने वाला दूसरे को समझा भी सकता है। तो वो सुनने सुनाने का काम किया है, वो कराने वाला तो शिव बाबा ही था ना, और वो समझने समझाने का काम किया है। एक साथ ही हो गया ना बाबा, एक साथ ही होता है। लेकिन शिव बाबा तो कैसे एक साथ प्रवेश करके कैसे कर सकते हैं? अरे जो सुनने के साथ समझना नहीं होता है। हाँ, हमने सुनाया और तुमने सुनने के साथ समझना नहीं किया, हाँ, तो एक साथ नहीं होता है। मतलब शिव बाबा ने तो वो ज्ञान का बीजारोपण जो है, समझने समझाने को ही तो ज्ञान कहा जाता है। तो समझने समझाने का ज्ञान का बीजारोपण शिव ने डाला, लेकिन माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया। सुनने और सुनाने का, सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ गया, उसके द्वारा समझने समझाने का फाउंडेशन पड़ गया, माने ज्ञान का फाउंडेशन उसके द्वारा पड़ा। इसलिए गीता में कहा, हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। ज्ञान का बीज पिता ने बोया। मेरा मतलब बाबा वो जो सुनने और सुनाने और समझने और समझाने का कार्य एक साथ होता है, एक साथ, वो तो शिव बाबा ही कोई भी कराए। सृष्टि की प्रक्रिया जो है, सृष्टि रचना की प्रक्रिया, स्त्री पुरुष दोनों का साथ ही साथ हाथ होता है। ऐसा नहीं कि पुरुष ने पहले पैदा किया बच्चे को या माँ ने पहले पैदा किया, ऐसा होता है क्या? फिर तो जो वो कार्य हो रहा था वो शिव बाप नहीं कराया था दोनों को एक साथ।
प्रवेश करके ही कराया था ना वो, मतलब शिव ही ये सृष्टि की शुरुआत का कार्य करता है। माता धारण करती है, बाप धारण कराता है भी। और बाबा जैसे कह रहे हैं ना वो हम आत्माओं की रोशनी इन आंखों से निकलती है, ऐसे ठीक है। बोला तो वो कैसे, वो मतलब रोशनी निकलने के बाद कैसे हो जाता है? मैं तुम्हें कभी ज्यादा फोर्स की दृष्टि नहीं मिलती है? हाँ मिलती है, अनुभव होता है। हाँ अनुभव होता है। तो ऐसे ही कभी हम दूसरे को दृष्टि देते हैं तो हमारी दृष्टि में ज्यादा फोर्स होता है। जैसे किसी को क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आने के टाइम आंखों में ज्यादा रोष आ जाता है। तो वही लाइट मतलब रोशनी वही हो जाता है स्थूल। हाँ हाँ, तो वो रजो प्रधान शक्ति है आत्मा की जो बाहर निकलती है क्रोध के टाइम पर। एक कंफ्यूजन बाबा वो इस आइस के बारे में, जैसे कहते हैं ना पीछे जाकर के सबकी जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते पूरा, उसका शरीर आइस में दब जाता है ना, फ्रीज हो जाएंगे। मतलब आइस में उसका जाम हो जाएगा ना उसका सब सोच। तो उस वक्त आत्मा उसके अंदर होता है कि मतलब शरीर से बाहर जाता है? जब वो आइस में होता है शरीर अंदर, तो आत्मा उस वक्त शरीर के अंदर होता है कि बाहर? सेंसलेस हो गया तो सेंसलेस कौन हो गया? मन बुद्धि तो सेंसलेस हो गई। हाँ। मन बुद्धि माने आत्मा। मतलब आत्मा उधर रहता ही क्यों रहेगा? नहीं रहेगा बाबा। जब शरीर निश्चल हो गया तो आत्मा उसमें क्या रहेगी, क्या करेगी? कहीं भी विचरण करेगी। मतलब ऊपर परम धाम तो नहीं जाएगा ना बाबा, इधर ही तो पता नहीं रहेगी सब आत्मा। जो 4.5 आत्मा में कोई भी आत्मा तो पुरुषार्थ पूरा नहीं वो कर भी पाएगा। आत्माएं हैं जिनका भी पुरुषार्थ पूरा नहीं होता है, भले चाहे अकाले मौत मरे, चाहे बर्फ में दबे, वो सब सूक्ष्म तन में इकट्ठी होगी। जो लास्ट विनाश होगा तब सब वापस जाएंगे। सब मतलब वो 4.5 आत्मा तो इधर सृष्टि पर ही रहेंगे ना बाबा, जो आत्मा है जो अपने शरीर को कंचन काया बनाने योग्य बन जाएंगे, हाँ जी। उन शरीरों में प्रवेश होता जाएगा। हाँ। क्या प्रवेश होगा और बच्चों की पैदाइश भी होगी। जन्म देने वाले और जन्म देने लेने वाले वो साथ ही ऊपर जाएंगे। माने प्रवेश होने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश हुआ है वो साथ ही साथ ऊपर जाते हैं, परम धाम जाएंगे। परम धाम जाते हैं और वापस आकर के उसी शरीर में फिर प्रवेश करते हैं। तो वो जो फ्रीज हुआ शरीर है, फ्रीज बस है। और कोई आत्मा तो उसका पुरुषार्थ पहले अपने आप ही वो संपन्न कर लेता है और उसको तो आइस में दबने की दरकार नहीं ना बाबा। 8 के अलावा सभी को दबना पड़ेगा। सभी को दबना पड़ेगा। इसका मतलब 8 ही रहेंगे इस सृष्टि पर और बाकी सब शुरुआत में तो 8 ही होंगे, बाकी सब परम धाम। परम धाम वापस जाने की बात नहीं है, वो बीच रूप स्टेज में रहने की बात है। जैसे यहाँ तुमने कहा कि हमें सब भूल जाता है, हाँ, निसंकल्प निसंकल्प स्टेज हो जाती है, तो क्या परम धाम चले गए? नहीं, परम धाम नहीं चले गए, बाप के वाइब्रेशन में आ गए, मतलब बाप के घर में आ गए। आत्मा यही रहती है, वो नहीं जाती। माना उस स्टेज में पहुंच जाती है, निसंकल्पी स्टेज माने निराकारी स्टेज। तो मतलब परम धाम जाने की बात नहीं ना बाबू, स्टेज। वो परम धाम जाने की बात तब है जब संपन्न स्टेज में पहुंच जाए, तो आना जाना होता है, वो एवरलास्टिंग जाना ही हो जाएगा, फिर वापस इस दुनिया में नहीं आना होगा। अभी तो हम जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वापस संकल्पों की दुनिया में। लास्ट टाइम का जो जाना होगा वो आखिरी होगा, गए और आए। परम धाम के बारे में जब इसको कोर्स कराया था नवीन भाई जी ने बताया था कि जैसे ब्रह्म कुमार तो दिखाते हैं कि नीचे पृथ्वी भी है, उसके ऊपर सूक्ष्म बतन है, तबक्का 3 वो तो गोल हिस्सा दिखाते हैं ना, गोल हिस्सा का मतलब पृथ्वी बीच में है और चारों तरफ सूक्ष्म बतन हो। परम धाम चारों तरफ है,
पृथ्वी के मतलब चारों, गोल ऐसे गोल जैसा है ना बाबा? पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, हाँ वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, हाँ, स्पेस के चारों ओर सूक्ष्म मतलब और परम धाम है। ऐसे गोल में है बाबा? हाँ, है ना, चारों तरफ है, ऐसे थोड़ी कोई ऊपर ही है या नीचे है, चारों ही तरफ है। तो परमधाम बाबा कितना, मतलब उसका भी वो तो बेहद होगा ना? तो बेहद है, उसको नापा नहीं जा सकता ना? ये दुनिया तो हद है, सूरज चांद सितारे ये भी हद में है। तो आत्मा कैसे रहती है बाबू उधर? नवीन भाई जी कहते हैं ऐसे गोल गोल में घूमते हैं जो बुद्धि में तीखी आत्मा होगी, हाँ जी, जितनी ज्यादा तीव्र तीखी आत्मा है, सबको अपनी परिधि में लेकर, सबको अपने कंट्रोल में लेके रखती है। जैसे शिव, उसके बाद प्रजापिता, शिव को कंट्रोल में नहीं रखे, परिधि में लेके नहीं रखेगा, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मात्र सब कंट्रोल में। ऐसे ही और नंबरवार जो भी आत्मा है 500 करोड़, वो सब एक दूसरे की परिधि में रहती है। यहाँ तक जीव जंतुओं की आत्मा है, वो मनुष्यों की परिधि में रहती है। कीड़े मकोड़ों की आत्मा है, वो पशुओं और पक्षियों के उसमें रहती है, परिधि में रहती है। और जड़, पेड़ पौधे उसमें भी इनकी आत्मा वो और पृथ्वी के नजदीक रहते हैं। माने जो जितना बुद्धि में तीखा वो पृथ्वी की 5 तत्वों की परिधि से परे, और जो जितना जड़त्व बुद्धि वो उतना नजदीक। इसलिए शिव बाप सबसे दूर, सबसे परे, सबको कंट्रोल करके रहता है। बाबा एक मुरली में मैंने वो अमीबा होते हैं ना, अमीबा वो जो मतलब आंख से नहीं देखते, वो सूक्ष्म अमीबा में भी आत्मा होते हैं, ऐसे बोला था। बैक्टीरिया अमीबा वायरस, उसमें अमीबा आत्मा होते हैं, होती है। बैक्टीरिया आत्मा नहीं होती है। बैक्टीरिया को टेलीस्कोप से देखते नहीं है डॉक्टर लोग, देखते हैं, मलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है उसको देखते नहीं, वो देखते हैं। तो फिर वो चैतन्य होता है, जड़ होता है? चैतन्य होता है, चैतन्य होता है, उसमें भी आत्मा होती है। और बाबा ये जैसे हम डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में देखते हैं कि शेर बकरी को मारता है और बहुत से वो क्या कहते हैं मगरमच्छ भी मारता है, तो उसको कितना दुख होता है ना, वो उसका खून सुन बह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बाबा? मतलब इतना हिंसा क्यों हो जाता है उस प्राणी की? उसका भी कुछ कर्म बंधन होता है? हिसाब किताब है ना, चौपाई होगा। चौपाई जो प्राणी है 4 हाथ पांव वाले, जो हाथ पांव से चलते हैं, 2 पांव और 2 हाथों से चलते हैं, वो चौपाई कहे जाते हैं। वो उनकी एक जाति है क्या, वो एक जात से दूसरी जात में कन्वर्ट हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है। जैसे द्वापर की शुरुआत में डायनासोर हुए होंगे, त्रेता के अंत की बात। हाँ, वो कोई जंगल में रहते हैं, जंगल में अचानक आग लगी तो सब मर गए, एक आध कहीं रह गया कोई मेल या फीमेल। तो जब अकेला ही रह जाए तो कोई न कोई दूसरे जीव जंतु के साथ संक्रमण करेगा ना, दूसरी जाति पैदा हो जाएगी, वो जाति खत्म। तो क्योंकि जानवर में तो मतलब मनन चिंतन मंथन नहीं होता बाबा, वो तो जैसे जड़ बुद्धि होता है। फिर भी तो बुद्धि है, तो उसका हिसाब लग जाता है। खाना पीना अपना स्वयं ढूंढता है ना, बुद्धि तो है, लेकिन मनन चिंतन तो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करता है? आग लगने वाली है, आग देख रहा है तो भागता है ना। शेर आ रहा है तो बकरी भागेगी ना, गाय भागेगी ना शेर को देख के। बुद्धि नहीं है बुद्धि तो है। फिर तो अपने अपने कर्म के हिसाब से ही उसको भुगतना पड़ता है ना बाबा। वो जो हाँ? बकरी जो होती है उसको तो अपने बकरी जन्म में बकरी बनी, पिछले जन्म में पता नहीं कौन सा चौपाया थी। और बाबा सत्य में तो ऐसा नहीं होगा ना, मतलब शेर और सत्य में हिंसा नहीं होती है, हिंसालु प्राणी नहीं होते हैं।
क्योंकि बताया गया है कि सत्य में तो सब नेचुरल ब्यूटी रहती है। हिंसक जीव जंतु नहीं होते। मनुष्य हिंसक नहीं है तो जीव जंतु भी हिंसक नहीं है। तो शेर भी नहीं होते ना, शेर मतलब ये जो हिंसक जानवर है इधर। जो भी जीव जंतु हैं वो हिंसा करने वाले नहीं होंगे। यहाँ मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति है तो हिंसा करने वाले जीव जंतु भी है। वहाँ मनुष्य भी हिंसक नहीं होगा तो जो भी जीव जंतु होंगे वो सब सात्विक होंगे, हिंसा करने वाले नहीं होंगे। मनुष्य विकारी बनता है तो सब जीव जंतु भी विकारी बन जाते हैं। मनुष्यों के अंदर वाइब्रेशन की पावर है, उससे सारी दुनिया का फिर परिवर्तन होता है। अभी भी दुनिया का परिवर्तन भाषणबाजी से नहीं होगा, भागदौड़ की सेवा करने से भी परिवर्तन नहीं होगा, वाइब्रेशन से भी परिवर्तन होगा। वृत्ति से ना, दृष्टि और वृत्ति बहुत पावरफुल काम करती है। और बाबा कहते हैं अष्टदेव के अलावा बाकी सबको धर्मराज का झाड़ू, धर्मराज का डंडा लगता है ना सभी को। ये 108 को भी लगेगा, मतलब 100 को, हाँ 100 को भी लगेगा और 16 सबको लगेगा ना। वो कैसे लगने का मतलब क्या होता है, कैसे? तो नंबरवार पाप कर्म कुछ रह जाते हैं भस्म करने के लिए, अपने पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाते। झाड़ू लगने का मतलब क्या है, कैसे झाड़ू? उसको कैसे? झाड़ू तो प्रकृति लगाती है कचरे की सफाई करने के लिए। धर्मराज की तो मार होती है, धुलाई होती है। कैसे डंडे से, मतलब किस वो अपने जो अपने उसमें विकर्म में किया है ना बाबा, वो विकर्म कैसे, उसको कैसे पता चला कि मेरा विकर्म विनाश हो रहा है, उसको झाड़ू धर्मराज का डंडा लग रहा है। उनको शरीर नहीं है अभी, जैसे ब्रह्मा सरस्वती विष्णु शरीर छोड़ गए, उनको शरीर अभी नहीं मिलेगा सूक्ष्मता, लेकिन सूक्ष्म शरीर से किसी में प्रवेश करके वो धुनाई होगी, धुनाई पिटाई होगी, उसको मतलब शरीर धारण करा के फिर सजा मिलेगी। ऐसे नहीं संकल्पों से सजा भोग करके खत्म हो जाएगी, शरीर से भी मार पड़ेगी। जैसे पिछली बार बाबा एक आत्मा प्रवेश कर गई थी ना मेरे अंदर, तो जो आत्मा प्रवेश कर रही थी वो क्या सब 4.5 लाख बच्चे जैसे जन्म लेने वाले वही आत्मा है कि दूसरा आत्मा है वो? जैसे कोई आत्मा प्रवेश कर लेते हैं, बीज रूप आत्मा में प्रवेश कर लेते हैं कोई आत्मा, तो जो आत्मा प्रवेश करती है वो आत्मा जो बीज रूप आत्मा उससे जन्म लेने वाली आत्मा है कि मतलब? 2 तरह की होती है। एक तो वो आत्मा है जो बीके से शरीर छोड़ने के बाद फिर प्रवेश करती है बीज रूप आत्मा। जिन बीज रूप आत्मा प्रवेश करती है उनकी स्थिति भी बीज रूप स्टेज बन जाती है, तो उनका चेहरा मोहरा दृष्टि बदलती नहीं है, सामान्य दृष्टि रहती है, सामान्य चेहरा मोहरा, सामान्य हरकत करते हैं, पता नहीं चलता कब आए कब गए। लेकिन कुछ ऐसी इविल सोल होती है जो प्रवेश करके हालत खराब कर देती है, जिसमें मेरे साथ हुआ। Nächster Partner immer mehr geht. Das ist gut करना। मैंने जैसे क्या आई के बाना तब वैसे ये बता रहा है कि बाबा जैसे अभी आपने कहा कि कोई आपके साकार में आया तो निसंकल्प भी हो जाता है, मतलब भूल जाता है, बहुत कुछ भूल जाता है, तो इसको तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब ये कि मैं स्कूल का ही नहीं हूँ, ये पूछ रहा है। क्या हुआ, क्या अनुभव नहीं हुआ? इसको वैसा अनुभव नहीं हुआ। किसी सोल इविल सोल प्रवेश करेगी अच्छी बात है क्या? नहीं। आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ नहीं है तो इविल सोल प्रवेश करेगी, अगर आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ है तो क्यों प्रवेश करेगी? और बाबा जैसे बताया गया है कि हर धर्म जो आधारमूर्त आत्मा था, आधारमूर्त आत्मा के नहीं, जैसे सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध प्रवेश कर गए, तो महात्मा बुद्ध तो परम धाम से पहली बार आते हैं ना, वो मतलब जन्म तो नहीं लेते, वो प्रवेश करता है। तो सिद्धार्थ तो जन्म लेता है शुद्धोधन से,
तो शुद्धोधन तो 20 रूप आत्मा होती है, एडवांस पार्टी में ही है अभी। तो उसका पिता प्रजापिता हो जाता है। शुद्धोधन का पिता बिंदुसार वो उसका प्रजापिता भी बाप है। मतलब माने बीज रूप आत्मा का भी पिता है। मतलब वो राम बाप ही है ना। तो बाबा है। तो हर धर्म यहाँ भी बाबा रह करके पार्ट बजाती है, शूटिंग करती है, तो वहाँ भी बाबा बनती है। तो क्राइस्ट का भी ग्रैंडफादर हो गया प्रजापिता, बुद्ध ओम नंद का भी ग्रैंडफादर हो गया, सब जगह हो। तो प्रजापिता की जो युगल होती है बाबा, तो युगल भी वही जगत माता ही होती है रामेश्वर। हो सकता है। तो उस क्राइस्ट के तो बाप नहीं होता क्या बाप तो बिना बाप के कैसे होगा? कुछ पूछना है? मेरा तो बस इतना ही बाबा। हो गया, चलो टाइम भी हो गया।